یہ بات بہت پرانی ہے اور تب کی ہے جب میں چوتھی جماعت میں تھا. ہمارا اسکول کو ایجوکیشن تھا. ایک دن ہمارے سارے اسکول کی ساری لڑکیاں کسی ایونٹ پر اسکول کی انتظامیہ کے ساتھ کسی ٹور پر گئی ہوئی تھیں. ان کے ساتھ زیادہ تر ٹیچرز بھی تھے اور یہ ایونٹ کچھ دنوں تک چلنا تھا. ہم لڑکے اسکول میں فارغ بیٹھے تھے کیونکہ ہمیں پڑھانے کے لیے خاص ٹیچر نہیں تھے. کیونکہ کچھ سبجیکٹ ٹیچر ایونٹ پر گئے تھے. ان ٹیچرز کے علاوہ ہمیں جو بھی ٹیچر فارغ دکھتا تو فری کلاسز دینے آ جاتا. بہت ساری کلاسز میں تو ہم اکیلے ہی بیٹھے رہتے تھے. ایک دن اسی طرح ہم کلاس میں اکیلے ہی بیٹھے تھے کہ ہم دوستوں نے ہارر گیم کھیلنے کا فیصلہ کیا. اس گیم میں 2 پینسلوں کو ایک پرچے پر رکھ کر کوئی سوال پوچھا جاتا ہے اور یہ پینسل ہل کر کاغذ پر لکھے جواب پر رک جاتے تو اس جواب کو ایک جن کا جواب سمجھا جاتا ہے. اس جن کا نام ہم اس گیم میں ونود تصور کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ گیم اصلی جن کے جوابات نہیں بتاتی مگر ہمارے ساتھ اس گیم کو کھیلتے وقت کچھ بہت عجیب ہوا. ہم نے جب یہ گیم کھیلی تو محسوس ہوا کہ کوئی بچہ پینسل کو برابر پھونک مار رہا ہے. اس شرارت سے بچنے کے لیے ہم سب نے دور بیٹھ کر منہ کے آگے ہاتھ رکھا اور پھر ایک سوال پوچھا تو پینسل پھر سے ہلنے لگی. ہم سب تھوڑا پریشان ہونے لگے اور کاغذ پہ لکھے سوالوں سے صرف میرے نام کے جواب آ رہے تھے. میں ان سب میں سب سے زیادہ خوفزدہ ہو گیا لیکن خود کو تسلی دی اور پھر ہم لوگوں نے دوسری گیم کھیلنے کا فیصلہ کیا. دن گزر گیا اور جب میں اگلے دن اسکول آیا تو نہ جانے کیوں یہ گیم پھر کھیلنے کا فیصلہ کیا. مگر جب اس بار پھر ہم نے یہی گیم کھیلی تو میرے دوست کی ٹیبل پر سے اس کی پانی کی بوتل اور سویٹر دور جا گرے اور ہم سب اپنی سیٹ پر سے اٹھ کھڑے ہو گئے. جب ہم اس کی بوتل کو اٹھانے لگے تو گرے ہوئے پانی میں ہم سب نے ایک چہرہ بنا دیکھا. اس کو دیکھ کر بھگوان کو یاد کیا اور اس کو ایک اتفاق سمجھ کر بھول گئے. اسی طرح ایک اور دن گزر گیا. اگلے دن صبح جب ہم کلاس میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہماری کلاس کے دروازے پر کسی چیز کے ناخنوں کے نشان تھے اور یہ دروازہ لوہے کا تھا. یہ دیکھ کر ہم ایک دوسرے کو یہ کہنے لگے کہ شاید کسی جانور نے کیا ہو. ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ کسی کو اس کا پتا تھا کہ کون کر سکتا ہے کیونکہ ہماری کلاس میں صرف ہم یا ہماری کلاس ٹیچر ہمیں لیکچر دینے آتے تھے. یہ وہ دن تھا جب سب خراب چیزیں ہونے لگیں. دروازے والے واقعے کے بعد ہمیں ہمارے ایک دوست کے ٹیبل کے ساتھ دیوار پر ایک عورت بنی ہوئی ملی جو کہ بہت عجیب سی تھی اور اس کے ساتھ کچھ لکھا ہوا تھا جو کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا جیسے کسی اور زبان میں لکھا ہوا. دن گزر گیا اور ہم سب کسی کلاس کے لیے دوسری کلاس میں گئے. شاید آرٹس کی کلاس تھی اور جب ہم واپس کلاس میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ ہم سب کے لنچ باکسز خالی تھے اور یہاں تک کہ میری پاکٹ میں پڑے ہوئے بادام بھی غائب تھے. یہ اس چیز کا پکا ثبوت تھا کہ یہ کسی بچے کی شیطانی نہیں تھی بلکہ کوئی اور ہی معاملہ تھا. اس دن ہماری کلاس میں ایک مس آئی تو ہم نے ان کو یہ سب بتایا. انہوں نے ہمیں اس بات سے ٹال دیا کہ بیٹا یہ چیزیں یہاں نہیں ہو سکتی, آپ کو وہم ہوا ہوگا. ہم لوگوں نے 2 اور ٹیچرز کو بتایا اور ان سے بھی یہی جواب ملا. ہم نے وہ پورا دن خوف میں گزارا اور گھر پہنچ کر اپنی امیوں کو یہ باتیں سنائیں. میرے زیادہ تر دوستوں کی امیوں نے وہم والی بات ہی دہرائی مگر میری امی نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو بھگوان سے پرارتھنا کرو کیونکہ شاید اس چیز کو آپ لوگوں کی کوئی حرکت بری لگی ہوگی. اگلے دن صبح جب میں سو کر اٹھا تو کچھ ایسا ہوا کہ جو میں آج تک نہیں بھلا پایا. میرے اٹھنے پر مجھے ایک چہرہ نظر آیا جو کہ بالکل میرے سامنے تھا. یہ چہرہ میری آنکھوں کی اتنا قریب تھا کہ مجھے اس کی ناک اپنی ناک کو ٹچ کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی. یہ چہرہ کالا سیاہ تھا اور اس کی آنکھیں لال تھیں اور ان میں سے روشنی نکل رہی تھی. یہ دیکھ کر میں نے بولنا چاہا مگر بول نہ پایا. جب میں نے 2-3 بار پلکیں جھپکائیں تو وہ چہرہ غائب ہو گیا. اس وقت میرے گھر میں میرے ملازمین کے سوا کوئی اور نہ تھا اور اس لیے میں چپ کر کے اسکول چلا گیا اور وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ ہماری کلاس کی سیلنگ اور اونچے حصوں پر پیروں کے نشانات تھے. میں کلاس میں سب سے پہلے آیا تھا اور جب میرے دوستوں نے یہ دیکھا تو ہم نے میم سے بات کرنے کا سوچا اور جب ہم نے ایسا کیا تو میم خود ہمارے ساتھ کلاس میں آئیں. تب وہ نشان غائب تھے. اس چیز نے ہمیں حیران کر دیا
اور میم کو یہ لگنے لگا کہ ہم کوئی مذاق کر رہے ہیں، اس لیے انہوں نے ہماری باتوں پر غور کرنا چھوڑ دیا۔ کیونکہ ہم بچے تھے تو ہم نے سوچا کہ شاید اسی گیم سے ہم اس چیز سے یہ پوچھ لیں کہ کیا یہ ہمیں چھوڑے گی۔ تو دوبارہ گیم کھیلنے پر یہ معلوم ہوا کہ جب بھی ہم یہ سوال پوچھتے تو پینسل نا پر آ کر رک جاتی تھی۔ اب تو نہ ہم پر میم اور مس یقین کرتے تھے اور نہ میں اپنے گھر والوں کو بتا سکتا تھا، کیونکہ وہ کسی کام سے ملک سے باہر تھے۔ جب میں گھر پہنچا تو اپنے بیڈ پر لیٹ گیا اور میرے واش روم کا دروازہ، جس کو پورا بند کرنے کے لیے زور کا دھکا لگانا پڑتا تھا، ایک دم سے بہت زور سے بند ہوا اور اس دن کوئی ہوا بھی نہیں تھی۔ میں یہ دیکھ کر رونے لگا اور روتے روتے سو گیا۔ نیند میں مجھے خواب آیا جس میں دیکھتا ہوں کہ جیسے کوئی چیز میرے ہاتھ میں چھری پکڑا کر مجھ سے میرے دوستوں کا گلا کٹوا رہی ہے۔ یہ دیکھ کر جب میں اٹھا تو اسی چیز کا چہرہ میرے منہ کے سامنے تھا۔ یہ دیکھ کر میں جلدی سے اٹھ گیا اور جا کر منہ دھویا اور یہ سوچا کہ اپنے دوستوں کو خواب کا بتاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی نقصان پہنچے۔ میں اسکول پہنچا تو میرے دوست کہنے لگے کہ تمہاری آنکھیں لال اور رنگ پیلا کیوں لگ رہا ہے؟ تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ میں اس چیز کو مذاق میں لے رہا ہوں اور اپنی طرف سے جھوٹی باتیں کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے ایسا کہا تو میں دوستوں سے ناراض ہو گیا۔ کلاس کے بعد ہماری بریک ہوئی تو ہمارے سارے بچے نیچے چلے گئے اور جب بریک ختم ہوئی تو ہم نے واپس اوپر جانے کے لیے لائن بنائی۔ میں لائن میں سب سے آگے کھڑا تھا۔ میں سیڑھیوں سے اوپر جا رہا تھا اور کلاس کے سامنے پہنچا تو میں نے کلاس کا دروازہ کھولا اور جب دروازہ کھلا تو سامنے کلاس میں کھڑی ایک عورت کو دیکھا جو پوری کالی تھی اور اس کی ٹانگیں لمبی اور بازو چھوٹے تھے، مگر اس کی انگلیاں لمبی تھیں جن کے آگے سے خون ٹپک رہا تھا۔ اسی چیز کا چہرہ صبح اٹھنے پر میرے چہرے کے سامنے آتا تھا اور اس کو یہاں سامنے دیکھ کر نہ میں کچھ بول پایا نہ کچھ کہہ پایا، بلکہ کچھ قدم پیچھے کیے۔ میرے ٹھیک پیچھے سیڑھیاں ہی تھیں۔ میں سیڑھیوں سے گرنے لگا تھا کہ میرے دوستوں نے مجھے پکڑ لیا۔ میری طبیعت بہت ہی خراب ہو گئی اور انہوں نے مجھے پکڑ کر کلاس میں بٹھا دیا۔ میں چند منٹ تک کچھ نہ بول پایا۔ جب تھوڑا سا دماغ چلنے لگا تو دوستوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے دوستوں کو سب بتایا اور انہوں نے مجھے اس چیز کی تصویر بنانے کا کہا۔ میں نے اس کی تصویر بنائی تو یہ سب بہت ڈر گئے۔ یہ تصویر بناتے ہوئے میں رو بھی بہت رہا تھا اور یہ دیکھ کر میرے دوستوں کو بھی مجھ پر یقین آ گیا۔ کلاس میں ہم سب بیٹھے تھے کہ ہمارے دروازے کے آگے سے ایک کتے جتنی بڑی ایک عجیب سی چیز بھاگنے لگی۔ وہ عجیب سی چیز بار بار گزر رہی تھی اور ہم سب وہاں سے بھاگ گئے اور میم کے پاس جا کر ان کو بتایا۔ انہوں نے جب ہم پر غصہ کیا تو ان کی کرسی بہت تیز تیز گھومنے لگی۔ یہ دیکھ کر ہم سب زور زور سے چیخنے لگے اور رونے لگے اور ہماری میم زور زور سے چیخیں مارنے لگیں۔ جب کرسی رکی تو میم بے ہوش ہو گئیں۔ میم کی چیخ سن کر سارا اسٹاف آفس میں پہنچ چکا تھا۔ میم کا سارا چہرہ بگڑا ہوا تھا اور اس پر ناخنوں کے نشانات تھے اور بعد میں ہم دوستوں نے تو یہی سنا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ہم سب کو اپنے اپنے گھر بھیج دیا گیا اور اسکول کو مینٹیننس کے بہانے 2 ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ اس لیے بہت سے بچوں نے اسکول چینج کر لیا اور ہماری کلاس شفٹ کر دی گئی۔ مگر ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ گھر پہنچنے کے کچھ دن بعد سارے دوست اکٹھے ہوئے تو ہم نے اس چیز کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ ہمیں معاف کر دیں کہ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کو کبھی تنگ نہیں کریں گے اور آپ ہمیں تنگ نہ کریں۔ اس کے بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن کچھ ہفتوں بعد ایک دن کلاس لیتے ہوئے میں نے مذاق میں اپنے دوست کے ساتھ مل کر کہا کہ جو کہ ہمارے ساتھ اس واقعے میں تھا، ہم دونوں نے مل کر اس جن کو مخاطب کر کے کہا، ونود یہ ہمارا اسائنمنٹ کر دو۔ تو وہ اسائنمنٹ نہ جانے ہم نے ایک دن میں کیسے ختم کر لیا، جبکہ وہ 1 ہفتے کی تھی۔ یہ دیکھ کر ہم نے اس وقت تو یہ سوچا کہ لگتا ہے ونود ہمارا دوست بن گیا ہے، لیکن ایسی بات میں نے پھر اس خوف سے نہیں کی کہ کہیں وہ پھر ہمیں تنگ نہ کرنے لگ جائے۔ آج بہت سالوں بعد بھی میں اسے اپنے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ جب اکیلا ہوتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی میرے پاس بیٹھا ہے۔
लेकिन ये अब कोई नुकसान नहीं पहुंचा था और मैंने वो स्कूल भी छोड़ दिया और उसकी एक दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर लिया था। तो आइए अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। इसे भेजने वाली का नाम है टीना। मेरा नाम टीना है और मैं 20 साल की हूं। मुझसे बड़ी एक बहन और एक भाई है और मुझसे छोटी एक बहन है। हम सबका बचपन एक ऐसे घर में गुजरा है जिसको छोड़ना कभी हमारे गुमान में भी नहीं था। लेकिन चूंकि हमारे साथ वहां पर कुछ ऐसे हादसात हुए थे जिसकी वजह से हमें वो घर ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा। हम एक छोटे से टाउन में रहते थे। हमारा घर दूर दूर तक पहचाना जाता था क्योंकि वो हमारे टाउन का सबसे बड़ा घर था। हमारे दादा अब्बू ने खरीदा था और फौत होने से पहले मेरे अब्बू के नाम कर दिया था। वो एक पुराना घर था। जब मैं छोटी थी तब से ही मुझे 2 ख्वाब मुसलसल आते थे जिसमें मरी हुई बिल्ली और खून होता था, या कभी मैं अपने आप को और अपनी अम्मी को एक मंदिर में पाती थी। जब भी मैं इस ख्वाब से उठती थी तो शदीद बदबू आती थी, जैसे कोई जानवर मरा पड़ा हुआ हो। मैंने अम्मी को काफी बार बताया, लेकिन उन्होंने इस बात को टाल दिया कि बच्चों को बुरे ख्वाब आते रहते हैं। मैंने भी ये सोचकर इस ख्याल को दबा दिया। मगर एक बार मेरी छोटी बहन रात के वक्त जिद करने लगी कि मुझे छत पर ले जाएं। हमारे लिए ये बात बहुत अजीब थी क्योंकि उसे हमेशा से छत पर जाने से डर लगता था। जब अब्बू ने उसे मना किया तो उसने अब्बू की तरफ खौफनाक निगाह से देखा हैरतअंगेज तरह से देखा और एक खौफनाक आवाज में रोने लगी। मैंने उसे जोर से झंझोड़ा तो उसने एक लम्हे में मुझ पर अपने हाथ से वार कर दिया और उसके नाखूनों के निशान ऐसे जैसे किसी जानवर के हों मेरे दाहिने गाल पे लग गए और खून निकलने लगा। बिल्कुल वैसी ही बदबू आने लगी जैसी अक्सर रात को आया करती थी। अम्मी ने यह देखकर फौरन मंत्र पढ़ा, मगर संभलने की बजाय वो और वैसी हो गई। अब्बू ने हनुमान चालीस मोबाइल पर लगाई तो वो बेहोश हो गई। वो रात हम सब ने जाग कर गुजारी। हमें समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। जो चीजें हम सबको अकेले में महसूस होती थीं, अब खुलकर सबके सामने होने लगी। मामा ने एक पंडित से राब्ता किया। उसके बाद कुछ अरसे के लिए सुकून रहा, मगर कुछ अरसे बाद मेरी छोटी बहन आधी आधी रात को छत पर खुद ब खुद चली जाती थी और हमारे घर के लॉन में जो आम का दरख्त था उसको देखकर हंसती थी। ये मंजर जब मैंने एक रात अपनी आंखों से देखा तो मेरे पांव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने उसे आवाज दी, मगर उसने मुड़कर नहीं देखा। मैंने 2 बार और आवाज दी कि जो कोई है मेरी बहन को छोड़ दे, मगर इस बार उसने सिर्फ अपना सर घुमाया, मगर उसका जिस्म वैसे ही आगे की तरफ था। ये देखकर जो खून मेरे जिस्म में दौड़ रहा था रुक गया। मैं छत पर खड़ी थी, सामने मेरी बहन गर्दन मोड़कर खड़ी थी। मैं इस सब को प्रोसेस कर रही थी कि मेरी छोटी बहन नीचे के दरवाजे से ऊपर आई और कहा कि ये छत मेरी है, तुम ऊपर क्यों आई। ये वो वक्त था जब मेरे लिए वहां से कूद जाना बहुत ज्यादा आसान था। एक वक्त में 2 जगह अपनी बहन को देख रही थी। एक मेरे सामने अजीब हालत में थी और दूसरी दरवाजे के सामने खड़ी थी। क्या यकीन करना है क्या नहीं, और ये सब क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चीख मारती हुई नीचे की तरफ भागी और मैं देखती हूँ कि मेरी बड़ी बहन मरी हुई बिल्ली का गोश्त खा रही है। 1 सेकंड के लिए लगा जैसे वही ख्वाब है जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। मैंने गीता के मंत्र पढ़ना शुरू किए। अम्मी अब्बू बड़े भाई के साथ एक कमरे में थे और उन्हीं पंडित को कॉल कर रहे थे। उन्होंने चंद मंत्र और टोटके बताए। इसके बाद मेरी दोनों बहनें चीखें मारती हुई बेहोश हो गईं। उस वक्त हमें उन्हीं पंडित ने अपनी पढ़ाई करके बताया, हमारे घर के लॉन में जो दरख्त है वो कई सालों से वहीं लगा हुआ है और इतना बड़ा है कि उसका कुछ हिस्सा छत को छू रहा है। उसके ऊपर बुरी आत्माओं की फैमिलीज रहती हैं। हमने उस दरख्त को काटने और मुसीबत लाने की बजाय यही बेहतर समझा कि उस घर को छोड़ दिया जाए, और भगवान की कृपा से इस हादसे को 3 साल हो गए हैं और अब हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारी आज की तीसरी कहानी कुछ यूं है कि ये पिछली सर्दियों की बात है।
सर्दी बहुत जोरों की थी। मैं उस वक्त गांव में था, वहां जमीनें वगैरह हैं। अब्बू दोस्त के साथ दावतों में गए थे। हमारी जमीन पर पानी की बारी थी। अब्बू ने उस रात मुझे कॉल करके कहा कि तुम जमीनों पर जाओ। जमीन के किसान बहुत अनाड़ी हैं, कोई काम ढंग से नहीं करते जब तक मालिक सर पे खड़ा ना हो। मैंने अब्बू की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं खाना खाकर निकलता हूं। साथ ही मैंने शॉटगन भी ले ली कि शायद कोई खरगोश का शिकार हो जाए। मैंने ये सामान उठाकर जेब में रख लिया। फिर मैं घर से निकला। 10-15 मिनटों में मैं जमीन पर पहुंचा। सारे किसानों को इकट्ठा किया और हमने आग जलाई। जमीन की दूसरी तरफ वाली साइड एक देवी का दरख्त था। हम वहीं बैठ गए। रात के 3:15 बजे पानी की बारी आई तो मैंने सबको काम में लगा दिया। सबको काम देकर सबकी निगरानी करके मैं उस आग के सामने बैठ गया। वहां बैठे बैठे मैं गाने सुन रहा था। रात के 4 बज गए। काम मुकम्मल हुआ तो मैंने सोचा कि अब घर जाना चाहिए, घर जाकर सुकून से सोना चाहिए। मैंने ये सोचा और जैकेट पहनकर गन उठाकर निकला। जो रास्ता गांव से हमारे घर की तरफ जाता था वहां पानी भर गया था। अब मैंने सोच लिया कि इतने सैलाब में कौन जाए, इसलिए मैंने दूसरे रास्ते से घर जाने का सोचा। मैं उस दूसरे रास्ते से जाने लगा। उस रास्ते की नौयत ऐसी थी कि मेरे बाएं तरफ कब्रिस्तान था और दाएं तरफ आम का दरख्त था। मैं जब कब्रिस्तान से गुजरकर आगे बढ़ा तो मुझे किसी के मेन रोड पर दौड़ने का एहसास हुआ। मैंने सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर होगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पलट कर देखा और जो देखा उससे मेरी सांस अटक कर रह गई। वहां एक औरत थी, आम सादे से फटे हुए कपड़ों में थी। उसकी आंखें काली थीं। उसके चेहरे और आंखों में इतनी दहशत थी कि मैं क्या बताऊं। इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि गन निकाल सकूं। मैं बिल्कुल सामने खड़ा था। मैं बिना हिले आंखें खुली की खुली रखे उसे देखता रहा। वो औरत बहुत अजीब थी। मैंने जैसे लाइट उसके चेहरे पर लगाई, वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं वहां से फौरन अपनी जमीनों की तरफ आया। वहां एक गार्ड था, उसे अपने साथ ले आया और उससे कहा कि मैंने एक अजीब सी चीज देखी है। हम जब दोबारा उस जगह आए तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ कदमों के निशानात थे। वो न जाने कैसी मखलूक थी कि कुत्ते भी उसे सूंघकर तलाश नहीं कर पा रहे थे। क्या वो इंसान थी, चुड़ैल थी या कौन थी, मुझे समझ नहीं आया। अचानक एक अजीब सी खौफनाक आवाज आई। वो आवाज ऐसी थी कि बस दिल निकल गया। ऐसी खौफनाक आवाज मैंने कभी नहीं सुनी थी। वो आवाज हर समत से आ रही थी। मैं उधर ही गिर पड़ा। पीछे देखा तो मालूम हुआ कि मेरे साथ जो बंदा था मालूम नहीं कब भाग गया। बस फिर क्या, मैं भी अपने 2 कुत्तों के साथ वहां से जितनी जल्दी हो सकता था भाग गया। इस हादसे की वजह से मुझे बहुत तेज बुखार हुआ। फिर दूसरे दिन मुझे पता चला कि उस जगह एक चुड़ैल का बसेरा है जो रात वहां से गुजरते हुए इंसानों को जख्मी करती है। कुछ दिन पहले उसने एक बच्चे को शदीद जख्मी किया था। जब कोई उसे मारने जाता तो वो मिलती नहीं है, वो सिर्फ अकेले इंसान पर हमला करती है। अब चलते हैं चौथी कहानी की तरफ। ये बहुत पुरानी बात है। हम फैमिली वालों ने प्लानिंग की थी घूमने के लिए मुंबई चलेंगे। मॉनसून का मौसम था। हमने वैन मंगवाई, बारिश को एंजॉय किया। दिन मस्तियों में गुजर गया और रात का वक्त हो गया। मेरे वालिद साहब के दोस्त का बंगला उधर ही था। हमने सोचा कि रात वहीं गुजारेंगे। मगर हम जब पहाड़ी इलाकों से आ रहे थे तो हमारी गाड़ी अचानक खराब हो गई। बड़ी मुश्किल से हम गाड़ी को धक्के मार मार कर बंगले में पहुंच गए। वहां बंगले में एक ही केयरटेकर था। मेन बंगले की बिल्डिंग बंद थी और डाउन वाली साइड 2 कमरे, 2 वॉशरूम और एक किचन था। हमने गाड़ी से सामान बाहर निकाला। केयरटेकर हमें वहां छोड़कर कहीं चला गया। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अब हमने सामान वगैरह निकाला। सबसे आखिर में मैं था। जैसे ही मैं चाबियां निकालकर आगे जाने के लिए मुड़ा तो गाड़ी की हेडलाइट्स जल बुझ होने लगी। मैंने अपने कजन को गालियां देनी शुरू कर दी कि ये क्या बेगैरती है, और वो कस्में खाता रहा कि ये मैंने नहीं किया। खैर हमने इग्नोर किया और घर जाकर डिनर बनाने लगे। मैं अपनी फैमिली का शेफ था।
बिरयानी बनाने की ख्वाहिश सबने जाहिर की तो मैं राजी हुआ। चावल भिगोकर एक तरफ रखे और दीगर मसाला जात तैयार करने लगा कि इतने में लाइट चली गई। फिर अचानक मैंने एक आवाज सुनी कि कोई कह रहा था, गधा चावल खा रहा है। ये आवाज सुनकर मुझे लगा कि जो चावल एक तरफ मैंने रखे हैं शायद कोई गधा मुंह मार रहा है। लाइट भी थोड़ी देर पहले जा चुकी थी, इसलिए मैंने टॉर्च लाइट जलाकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मुझे लगा कि मेरा कजन मुझे तंग कर रहा है। मैंने इग्नोर करके चावल बनाए। बिरयानी तैयार हुई तो मैं टेबल पे सजाकर सबको पुकारने लगा। सब हाजिर हुए और खाने लगे तो उनका मुंह बन गया कि आखिर तुम कैसे शेफ हो और ऐसे आधे पके आधे कच्चे चावल लाए हो। बहुत गालियां पड़ी। मैंने उसे अपनी गलती समझकर इग्नोर कर दिया। बंगले के लॉन में कुछ खजूर के दरख्त लगे थे। हम घर में बैठे थे, मगर कांच के दरवाजे के पार खजूर के बाग नजर आ रहे थे जिनके पत्ते तेज तेज उड़ रहे थे। हम हैरान हुए कि मॉनसून की इस गर्मी में आखिर पत्ते हिल क्यों रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने गौर नहीं किया था और इग्नोर किया और सोने की तैयारी शुरू कर दी। रात के करीब 1 बज रहा था। सोने के लिए चारपाइयां हमने एक एक करके लाइन से लगाई हुई थी और वो जो केयर टेकर था वो खामोशी से आया, सब कुछ ठीक करके गायब हो गया। पता नहीं कहां चला गया। मैं सो गया। काफी थकन थी और रात के 3 के करीब मेरे बराबर वाली चारपाई पे लेटा कजन सोया हुआ था। ये अचानक वो चीखने लगा कि बगैर तो मुझे मत मारो, मैं बाबा को फोन करके बुला लूंगा, तुम सब मुझे मिलकर बहुत मार रहे हो। हम जैसे उठे तो देखा कि उसकी टांगें चारपाई की रस्सियों में जकड़ी हुई थी। हमने उसे पानी पिलाया। जब उसकी हालत बेहतर हुई तो वो हम पर चीखा कि इतना गंदा मजाक किया है तुम लोगों ने मेरे साथ, मैं तुम सबको माफ नहीं करूंगा। फिर हमें शक होने लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। थोड़ी देर हम उसके साथ बैठे और फिर हम अपनी अपनी जगहों पर जाकर सो गए। अभी हमारी आंख लगी भी नहीं थी कि किचन से बर्तनों की आवाज आने लगी, जैसे कोई स्टील के बर्तन पर स्टील का चम्मच मार रहा था। हम सब उठ खड़े हुए। फिर एक हड़बड़ी सी मच गई। सब एक ही बात कह रहे थे कि यहां से फौरन निकल जाओ, वरना सुबह तक हम में से कोई भी नहीं बच सकेगा। धक्के मारकर गाड़ी को बंगले तक लाए थे, मगर न जाने कैसे। उम्मीद गाड़ी से थी कि फिर से गाड़ी की तरफ चले। न जाने क्या वजह थी कि जिस गाड़ी को धक्के मार मार कर बंगले तक लाए थे, फिर उसी से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। हम में से हर एक को यकीन था कि गाड़ी चलेगी नहीं, मगर जब गाड़ी में बैठकर मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की तो गाड़ी एकदम से चल पड़ी। हमारी गाड़ी बाहर निकली। मेन दरवाजे पर वो अजीब सा केयरटेकर बैठा हुआ था। हमने महसूस किया कि बंगले के लॉन में ऐसी तेज हवाएं चल रही थीं कि दरख्त के पत्ते उड़े जा रहे थे, मगर बाहर महज हल्की हल्की हवाएं चल रही थीं। थोड़ी देर चलकर जो कजन ड्राइव कर रहा था वो बोला कि अपने बाएं तरफ देखो। जब देखा तो नारियल के दरख्त के नीचे एक अजीब सी औरत बैठी थी। मैंने फौरन से चेहरा मोड़ लिया और भगवान को याद करने लगा। वो खराब गाड़ी रास्ते में एक जगह भी नहीं रुकी और हम घर पहुंच गए। आइए चलते हैं अगली कहानी की तरफ। मेरे चचा और चची दिल्ली में रहते हैं। वो इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में काम करते हैं। चचा ऑफिस में होते हैं और चची घर में अकेली होती हैं, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादा आबादी नहीं होती, वो उधर ही रहते थे। उनका घर बहुत अजीब था। शुरू में कभी कभार अजीबोगरीब चीजें होती थीं, जैसे दरवाजे का बंद होना, लाइट जलना बुझना। उनको ये चीजें महसूस हो जाती थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें बढ़ने लगी। एक दिन चची किचन में खाना पका रही थीं और वापस आई तो महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है और जैसे सांस ले रहा हो। फिर एक दफा तो वो सोने के लिए बैठ गईं और लेटी हुई थीं, तो उन्होंने एक साइड करवट ली और दूसरी साइड पर वहां उन्हें कोई बैठा हुआ नजर आया। ये 2 वाकयात कुछ दिनों के फासले पर हुए। चची ने ये सारी बातें चाचा को बताईं। चाचा ने अपने ऑफिस के दोस्त से ये बातें शेयर की तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम भी रहा करते थे, ऐसा कुछ नहीं था। खैर चाचा ने घर आकर चची को तसल्ली दी।
मगर चची के साथ यही सारी चीजें होती रहीं तो चचा ने मजबूरन वो घर छोड़ दिया। मगर दूसरे घर में भी यही सब कुछ हुआ। अब की बार तो चीजें अपनी जगह से गायब हो जाती थीं। फिर अचानक मेरे भाई की शादी का दिन आया। चचा और चची हमारे घर आए हुए थे। शादी के बाद घर जाने के लिए जब चची पैकिंग कर रही थीं, तो उन्होंने कहा कि तुम भी हमारे साथ चलो। मैंने बहुत इनकार किया कि फिर कभी आ जाएंगे। जब चची घर पहुंची तो एक दिन बाद उनका फोन आया कि तुम लोग अपने घर को देखो, कहीं मेरा सोने की ज्वेलरी का बॉक्स वहां तो नहीं रह गया। हमने अपने घर में ढूंढ लिया मगर ऐसी कोई चीज नहीं मिली। खैर चची ने अपना घर पहले ही ढूंढ लिया था। हमने ढूंढा तो कुछ न मिला। अम्मी को बहुत शर्मिंदगी हुई कि हमारे घर शादी पर आकर चची के जेवरात खो गए। मगर चची कह रही थी कि उन्हें अच्छी तरह याद है कि उन्होंने डब्बा बैग के चोर खाने में डाला था और उसे लॉक भी किया था। अगले दिन वो सेम डब्बा उन्हें अपने घर के वॉशरूम में मिल गया। उन्होंने हमें बताया तो हम सब ने शुक्र अदा किया। कुछ दिन हुए कि उनकी तरफ से पैगाम आया कि अब उनके साथ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। कभी खून के छींटे नजर आते थे तो कभी चीजें गायब हो जाती थी, खास तौर पर मिठाइयाँ या मीठी चीजें। बात तब बढ़ी जब चाचा और चाची सहन में टीवी देख रहे थे कि उन्हें सामने कोई खड़ा हुआ नजर आया और फिर वो दीवार पार करके गायब हो गया। ये देखना था कि चाचा और चाची घर से भाग निकले और फिर उन्होंने सारी रात पड़ोसियों के यहाँ गुजारी। अगले रोज उन्होंने पंडित को बुलाया और फिर उन्होंने मंत्र वगैरह पढ़कर आत्माओं को कंट्रोल किया। और फिर पता चला कि जो आत्मा उस घर में है उसे सफाई पसंद है और फिर वो इसलिए चची को तंग करते थे क्योंकि चचा सिगरेट नोशी ज्यादा करते थे। पंडित ने चचा को ताकीद की कि वो घर में सिगरेट नोशी से परहेज करें। चचा और चची ने 1-2 दिनों तक पंडित की बातों पर अमल करके देखा तो उन्हें आत्माओं ने कभी तंग न किया और फिर वो सुकून से उस घर में रहने लगे।